हेडिंग क्या रखेंगे आज? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसको हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, इसको डेफिनेशन को। कितना कैटेगरीज में? 5 कैटेगरीज में। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ एडिंग होना है, गेन और लॉसेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गेन, देखो फास्ट रीडिंग के करता हूं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ गेन्स और लॉसेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गेन होने से कौन सा रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीजन लॉस होने से कौन सा रिएक्शन होता है? रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर? सेकेंड टाइप, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले को टाइप लिख लेते हैं। सेकेंड टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ गेन्स और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड में क्या था? देखो ऑक्सीजन आइडर गेन होगा, नहीं तो लॉस होगा, और हाइड्रोजन गेन होगा और लॉस होगा। तो सेकेंड बेसिस इज द ऑन द बेसिस ऑफ गेन्स और लॉसेस ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? When hydrogen is gained, which type of reaction? Reduction reaction. Hydrogen is lost, which type of reaction? Oxidation reaction. Number 3, on the 4 types को हमने already definition में दे दिया। On the basis of combined और electroppositive element on the basis of combine और remove, combine होना और remove होना of electropositive element। हमने बताया था डेफिनेशन में electropositivity, either gain or loss electropositivity। So when the electropositive element is gained, that is reduction reaction. When electropositive element is losses, this is oxidation reaction. Number 4, on the basis of combined with or removal of electronegative element so when the reactant electronegative element combined होगा, this is the oxidation reaction. Electronegative element loss होगा, this is the reduction reaction. And the fifth type, which has not given you an answer, on the basis of electron exchange. So oxidation and reduction reaction can be classified or categorized into 5 types. 5 categories. 1. On the basis of gain or loss of oxygen. On the basis of gains or loss hydrogen, you may write gains. Instead of gains, you may write the combine, loss, remove. Third point, on the basis of combine or remove of electropositive element. Fourth point, on the basis of combine with or removal of
separated and keep them on the basis of electron exchange. Electron exchange on the basis of electron exchange. Repeated reduction and oxidation reaction. Oxidation and reduction reaction can be categorized on the basis 5 types. On the first number, on the basis of gains or losses of oxygen, on the basis of gains or losses of hydrogen, on the basis of combine or remove of electropositive element, on the basis of combine with or removal of electronegative element, and the fifth point, which is unknown to you, is on the basis of electron exchange. How many types? 5 types. लर्न हो जाएंगे? आप भी लर्न हो जाएंगे। एवं हमने क्या करेंगे? On the basis of gains, oxygen, hydrogen, removal, electropositive, electronegative, and exchange, we give the different definition of the oxidation and reduction reaction. जो हमने पहले दे दिया उसके साथ उसी की तरह, पर इसे थोड़ा लंबा कर लेंगे। क्लियर कर दो? ओके? हाँ, जो भी है देखो, आप सबको मैं नहीं देख पा रहा हूं, ठीक है ना? जो भी है, जो जिसका जो प्रॉब्लम है आप करो, बताते रहना। फर्स्ट टाइप on the basis of gains or losses oxygen. On the basis of gains or losses oxygen, we give the definition of reduction reaction and oxidation reaction. First, oxidation reaction. Oxidation reaction. When we give the complete oxidation reaction, then we give all the properties. But only here we only mention the oxygen is gained, and other properties will not be mentioned. Oxidation reaction. Definition: the chemical reaction in which one of reactant, same as the previous, one of reactant gains oxygen, is called oxidation reaction. Again, oxidation reaction on the basis of oxygen gain or loss. The chemical reaction in which one of reactant gains oxygen is called oxidation reaction. Simple example. We give already this example: magnesium plus oxygen. What will form? Magnesium react with oxygen. What will form? What will be the product? Magnesium oxide. Magnesium oxide. Is it right? Magnesium oxide. MgO. Right? Remember our formula: magnesium plus oxygen. Formula, write the formula of compound. Magnesium, the valency of magnesium 2, valency of oxygen 2. So exchange their position, valencies, and 2 are 2 already cancelled. That will MgO. Okay? So it is right. Magnesium oxide, the
formula is right. If the equation is balanced, count it. There is oxygen 2 and the product number of oxygen 1. So we keep it name oxygen 2 multiply MgO. Then in the product magnesium is 2 and this is the complete balanced equation. Clear? एक बार आपको देखना पड़ेगा इसका ऑक्सीडेशन किसको होगा. In the reactant magnesium and oxygen, two elements, we find the product. Magnesium convert into magnesium oxide. Magnesium react with oxygen and convert into magnesium oxide. So magnesium gain oxygen in the product. Magnesium gain oxygen. So gain oxygen, that is oxidation reaction. Here the magnesium get oxidized. In this reaction, magnesium get oxidized because magnesium combined with oxygen. Next, oxidation reduction reaction. On the basis of both definitions are come from on the basis of gain or loss of oxygen. Losses of oxygen. The chemical reaction similarly the chemical reaction in which one of the reactant losses what loss? Oxygen. Is called reduction reaction. Again, जो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का डेफिनेशन लिया था उसको ब्रेक करके खत्म छोटे छोटे पार्ट में इसको डेफिनेशन लर्न करेंगे और on the basis of आपको क्वेश्चन आएगा on the basis define oxidation reaction on the basis of oxygen gain and loss. Second, reduction reaction, the chemical reaction in which one of the reactant losses oxygen is called reduction reaction. We take an example. The potassium chlorate. When we heat potassium chlorate break down potassium plus oxygen. It is balanced chemical equation. हम chemical equation के बारे में बताएंगे आपको. देखो reduction देखो when we heat potassium chlorate break down into potassium chloride and oxygen. Carefully observe. In the reactant potassium chlorate number of oxygen potassium chlorate में कितना ऑक्सीजन है 3 दिखाई नहीं दे रहा है कितना है पोटेशियम क्लोराइड में 3 to the 6 ऐसे भी ले सकते हो आप ओनली लेना ओनली मॉलिक्यूल में कितना है 3 बट इन दिस पोटेशियम क्लोराइड में देखो ये आपसे यहाँ ऑक्सीजन है क्या इसके अंदर में इस प्रोडक्ट में तो ऑक्सीजन क्या हो गया लॉस हो गया ऑक्सीजन लॉस होना लॉस ऑक्सीजन इज कॉल्ड reduction reaction. So it is an example of
reduction reaction. Again, I explain it. Example, when we heat potassium chlorate, KClO3, potassium chlorate, KClO3, heat. This is the symbol of heat. This means delta and regulated delta. This means heat. Heat breaks down into potassium chloride. इसमें potassium chloride and oxygen. We see that, we observe that the oxygen of potassium chloride and losses from potassium chloride. So in this reaction, oxygen is losses from potassium chloride. Here potassium chloride get reduced. That means it is the reduction reaction. Clear? आया समझ में? और एक बार पूरे हम स्टार्टिंग से करें. ऑन द बेसिस ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन गेन होने से कौन सा रिएक्शन? ऑक्सीजन गेन होने से कौन सा रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. इसका एक एग्जांपल याद रखना पड़ेगा. व्हेन ऑक्सीजन लॉस, कौन सा रिएक्शन? रिडक्शन रिएक्शन. आपको ये वाला एग्जांपल याद रखना है. आ रहा है समझ में? क्लीन करो इसको. सेकेंड पॉइंट क्या बताया हमने? ऑन द बेसिस ऑफ गेन और लॉस तो फाइंड हो जाए. हां, गेन एंड लॉस तो फाइंड हो जाए. हाँ, वेरी गुड. प्रदीप पढ़ रहे. देख तेरे वॉल्यूम से मेरे को पता है से गेन और लॉसेस ऑफ हाइड्रोजन. ये कौन बताया था? प्रदीप बता रहा ना. ऐसे बताते रहो तो मेरे को भी लगे कि आप पढ़ रहे हो. नहीं तो कैमरे के पीछे रह के मेरे को क्या पता चलेगा सामने रह के आप पीछे क्या कर रहे हो. आवाज देख रहे हो. ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन. सिमिलर डेफिनेशन. एक डेफिनेशन लर्न होते ही सब डेफिनेशन अपने अपने लर्न हो जाएंगे. द केमिकल रिएक्शन in which first definition oxidation. The chemical reaction in which आपको लर्न हो जाना चाहिए. एक ही वर्ड है. in which one of the reactant क्या हो जाएंगे? लॉस होगा हाइड्रोजन लॉस. वन ऑफ द रिएक्टेंट लॉस हाइड्रोजन is called oxidation reaction. Again, the chemical reaction in which one of the reactant loss. हम लोग पहले वाला जो डेफिनेशन में और लगाया था, इसमें और में सिंगल. One of the reactant losses hydrogen is called oxidation reaction. Example साथ ये हर कई एग्जांपल लिखो. हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन गिव वाटर प्लस सल्फर. देखो सर इसको ऑक्सीडेशन किसको? हाइड्रोजन में देखो, हाइड्रोजन के साथ कौन ऐड था? सल्फर. पहले हमने रिएक्टेंट देखेंगे. हाइड्रोजन के साथ कौन ऐड था? सल्फर. यहां कौन ऐड हो गया? ऑक्सीजन. इसको छोड़ो. पहले देखो सल्फर के साथ कौन ऐड हो गया? सल्फर के साथ कौन था?
सुनाई नहीं दे रहा किसी को आवाज? सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? ये सर्किट चक्कर में वो है मैग्नेटिक, ये साउंड को साउंड क्लियर नहीं है, मैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है। हेलो, हाँ देखो यहाँ सल्फर के साथ हाइड्रोजन ऐड कर, ओके, और यहाँ देखो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, सल्फर लॉस हो गया, इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन कुछ नहीं हुआ। ये वाला सल्फर के साथ कौन था? हाइड्रोजन ऐड था, बस यह सल्फर हाइड्रोजन लॉस करके ओनली सल्फर कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड लॉसेस hydrogen convert into sulfur. It is an example of oxidation reaction. Wow, teacher. दोबारा एक्सप्लेन करें। हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर एंड सल्फर बनाते हैं, ओके। इन दिस रिएक्शन रिएक्टेंट हाइड्रोजन सल्फाइड losses hydrogen convert into sulfur. The loss of hydrogen means oxidation reaction. Clear? ताकि एक दूसरे को साउंड पे चेंज हो जाए। फिर देखो reduction reaction on the basis of hydrogen loss and gain. सिमिलरली सेम होगा, बस यहाँ ही चेंज होता है। सबसे अच्छा से एग्जांपल, एक डेफिनेशन को आप अच्छे से लर्न कर लो। सबके सब लॉस आर गेन इसके ऊपर होगा। द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच one of reactant gain hydrogen is called reduction reaction. So reduction reaction, the chemical reaction in which one of reactant gain hydrogen is called reduction reaction. Example, देखो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये दोनों कंबाइन होके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बात देखो, इसमें कहां देख रहा है हाइड्रोजन गेन किसके साथ हुआ? क्लोरीन के साथ। इन द रिएक्टेंट देयर इज ओनली क्लोरीन, बट इफ वी सी इन द प्रोडक्ट द क्लोरीन इज एड विद हाइड्रोजन, so it is an example of reduction reaction. किसी को कोई डाउट है? और एक पे हमने रिवाइज कर देता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लॉस मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन गेन मीन्स रिडक्शन रिएक्शन। ये दोनों चीज आपको याद रखना है। द केमिकल रिएक्शन इन विच वन ऑफ द रिएक्टेंट लॉसेस हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जांपल, hydrogen sulfide react with oxygen form water and sulfur. Here hydrogen sulfide losses hydrogen from sulfur, so it is an example of oxidation reaction. Second, the reduction reaction, the chemical on the basis of losses or gain of hydrogen, the chemical reaction in which one of the reactant gains hydrogen is called reduction reaction. Example, hydrogen plus chlorine forms hydrogen chloride. Here chlorine gains hydrogen from hydrogen chloride, so hydrogen gain हुआ, so it is an example of reduction reaction. Clean कर दूं? Yes, sir.
Find number on the basis of क्या था? Combine or removal of electropositive element. Combine or loss of Electropositive element. electropositive Element. देखो डेफिनेशन लिखने से पहले हम बताता हूं ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने बताया था इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एलिमेंट मींस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अगर गेन हो तो कौन सा होगा रिडक्शन रिएक्शन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अगर लॉस हो तो कौन सा रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा The chemical reaction in which oxidation electropositivity loss the chemical reaction in which one of the reactant losses or removal electropositive element again the chemical reaction in which one of the reactant ये हर डेफिनेशन में कॉमन है इसके बाद होगा लॉस और गेन और जिसके बेसिस में वो लॉसेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन एग्जाम्पल लेना पड़ेगा आपको देखो इसमें देखो हाइड्रोजन सल्फाइड hydrogen sulfide react with chlorine form hydrogen chloride and sulfur. Here sulfur loses hydrogen. That means electropositive element hydrogen को हम क्या कंसीडर करता हूँ हाइड्रोजन कंसीडरेड एज ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सो इसको ऑक्सीडेशन होता है क्या होता है इसको ऑक्सीडेशन आपको ऑक्सीडेशन किसको हो रहा है रिडक्शन किसको हो रहा है वो देखना है जैसे क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया इट इज रिडक्शन रिएक्शन आल्सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिडक्स रिएक्शन इसमें आरेख देख के रखा है पोटेशियम आयोडाइड हाँ सुनाई नहीं दे रहे क्लियर नहीं हो रहा साउंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है किसको बोलते हैं जो एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो एलिमेंट पॉजिटिव आयन बनाते हैं उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको जो एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बनाते हैं और मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होते हैं और मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड ऑल नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लियर हो गया आपको
साथ में ये भी चीज याद रखना है आपको क्लास है जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज मेटल के सबको पॉजिटिव, सब मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इसका मतलब नहीं है सब मेटल का सेम पॉजिटिविटी है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं पोटासियम, हाई रिएक्टिव एलिमेंट है पोटासियम Cr पॉजिटिव एलिमेंट, जो नेगेटिव आयन देते हैं वो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। ये बात किसको ज्यादा किसको कम, ये दोनों हम जब पीरियोडिक टेबल करेंगे तब ये चीज और भी क्लियर हो जाएंगे, ये मेरा कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। और भी एग्जांपल देखो, एक दिखा देता हूं। पोटासियम आयोडाइड क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं, पोटासियम आयोडाइड रिएक्ट विद क्लोरीन फॉर्म पोटासियम क्लोराइड प्लस आयोडीन। हाँ, क्या किसी प्रॉब्लम आ रहे हैं? मेरे को नहीं दिखा है, आप नाम बताओ और साथ में बताया करो मेरे को, शायद ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ ना आपको, कैमरा इधर है, स्क्रीन उधर है। आया समझ में ये आपको? सिमिलरली देखो, ये पोटासियम आयोडाइड, पोटासियम कौन सा मेटल है, पॉजिटिव आयन देते हैं, तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। आयोडीन क्या होता है, नेगेटिव एलिमेंट होते हैं, नॉन मेटल है, ये नेगेटिव आयन देते हैं। पोटासियम आयोडाइड, ये आई पोटासियम आयोडाइड प्लस क्लोरीन Cl2, ये रिएक्शन करके पोटासियम क्लोराइड प्लस आयोडीन। तो इसमें देखो, ये दोनों का अच्छा से ऑब्जर्व करो। पोटासियम आयोडाइड के साथ क्या था, पोटासियम ऐड था, आयोडीन क्या हो गया, सेपरेट हो गया, मतलब लॉस ऑफ पोटासियम। पोटासियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। आपको अभी जो याद रखना है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स व्हिच फॉर्म पॉजिटिव आयन कैटायन, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स व्हिच फॉर्म एनायन, नेगेटिव आयन। So it is an example of oxidation reaction, removal of loss or removal of positive element, oxidation reaction. Any doubt? Again, oxidation reaction, the chemical reaction in which one of the reactant loses electropositive element, losses or removal as your choice, whatever is right. Example, two example we given here. Hydrogen sulfide plus chlorine forms hydrogen chloride plus sulfur. Is the hydrogen sulfide losses hydrogen forms sulfur. Here the sulfur losses hydrogen, so it is an example of oxidation reaction, because losses of electropositive element, hydrogen is the electropositive element, because hydrogen forms hydrogen plus ion, that is cation, positive ion. Second example, potassium iodide react with chlorine from potassium chloride and iodine. So here we see that potassium iodide losses potassium, forms iodine. Iodine loss potassium. Potassium is electropositive element, so it is an example of oxidation reaction. Next, reduction. Reduction reaction on the basis of combining. Example से ही नहीं होगा बस. The chemical reaction in which one of the reactant loss किसे क्या हो जाएंगे? Gain. Electropositive element is called reduction reaction. एक एग्जाम्पल से अभी दिखा सकते हैं, अभी जो पॉजिटिव आयन दिखा रहा था हमने, अभी तो हमने वो पोटासियम आयोडाइड दिखाया था, उससे भी कर सकता हूं। देखो क्या हो गया आपको, पोटासियम क्लोराइड प्लस आयोडीन, इट वाज द रिएक्शन। ये बार देखो, इसमें क्लोरीन के साथ क्या हो गया, इसमें क्लोरीन था,
प्रोडक्ट में क्लोरीन पोटेशियम के साथ ऐड हो गया, पोटेशियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, so electropositive element is added with chlorine, it is an reaction of example of reduction. दूसरे एग्जांपल ले लो, मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड, here chlorine not magnesium, chlorine combines with magnesium, that means chlorine gains electropositive element, so chlorine gets reduced, रिडक्शन। आप जब भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का डेफिनेशन पर दिखाओगे तो किसको हो रहा है, ये एरो जरूर दिखाना है, किसको हो रहा है। क्लियर, क्लीन कर दो। सर एक बार फर्स्ट एग्जांपल दोबारा बताना। ये पोटेशियम आयोडाइड है ना, जो हमने ऑक्सीडेशन में दिखाया था। ऑक्सीडेशन में लिखा था आयोडीन से पोटेशियम हट के पोटेशियम आयोडाइड से पोटेशियम लॉस हो जाए तो आयोडीन बनाया था, तो लॉस ऑफ पॉजिटिव आयन। और ये क्लोरीन के साथ पोटेशियम ऐड हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड होने के बाद पोटेशियम क्लोराइड बना, तो गेन ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन। क्लोरीन का रिडक्शन और इसमें पोटेशियम आयोडाइड का ऑक्सीडेशन, इसलिए ये सब के सब एग्जांपल ऑफ रिडक्शन रिडक्स रिएक्शन के एग्जांपल है। Fourth, on the basis of electronegative, on the basis of gain or losses of electronegative element, पॉजिटिवता एवं ऑक्सीडेशन। हमने ऑक्सीडेशन के डेफिनेशन बताया था, द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच वन ऑफ द रिएक्टेंट गेन ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज जो गेन करेंगे। द केमिकल रिएक्शन in which one of the reactants gain is combined etc. Combined, both are same, electronegative element is called oxidation reaction. Again, the chemical reaction in which one of the reactant gains or combined electronegative elements is called oxidation reaction. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ एग्जांपल, एक ही एग्जांपल जो आप बार बार घुमा सकते हो। एक देखो, मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन क्या बनेंगे? मैग्नीशियम क्लोराइड। वेरी गुड, एक ही चीज बार बार दे रहा हूं, मैग्नीशियम क्लोराइड। अच्छा देखो, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोनेगेटिव ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव? मैग्नीशियम एलिमेंट है, मेटल्स है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और क्लोरीन क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। हमने बताया जिसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड हुआ, तो इसके देखो किसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड हुआ? मैग्नीशियम के साथ।
तो हमने इसको दिखाएंगे। Here the magnesium gain electronegative element chlorine, और जिसमें गेन होता है, कंबाइन होता है, वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिंपल आपको देखना पड़ेंगे, हर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। आपको ढूंढना है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। सिमिलरली देखो उल्टा हो जाएगा, क्लोरीन के साथ कौन ऐड हुआ? मैग्नीशियम ऐड हुआ, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ऐड हो गया था, हमने जो पहले वाला एग्जांपल में दिया था। तो नेगेटिव एलिमेंट के साथ पॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो गया था, तो क्लोरीन का रिडक्शन हो गया, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन लिखेंगे सेम, द केमिकल रिएक्शन in which one of the reactant next loss is electronegative element is called reduction reaction. Again, reduction reaction, the chemical reaction in which one of the reactant loses electronegative element is called reduction reaction. एग्जाम्पल में देखो, आयरन क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन देते आपको फेरस क्लोराइड प्लस HCl। दिखाई दे रहा है आपको ये? देखो Ap आयरन क्लोराइड, AbCl3 फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गिव फेरस क्लोराइड एंड HCl। अच्छा देखो, इसमें आयरन के साथ आयरन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, क्लोरीन इज द इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, नॉन मेटल है, नेगेटिव आयन देते हैं। फेरिक क्लोराइड में क्लोरीन कितना था? कितना है? आवाज नहीं आ रही आप सबको? दिव्यांश सुनाई दे रहा है आपको? हाँ तो बताया ना कितना है? 3। ये बार इसको बोलते हैं फेरस क्लोराइड। फेरस क्लोराइड में क्लोरीन कितना है? 2। तो लॉस कौन अगेन हुआ आपको? क्लोरीन का लॉस हो गया ना, एक कम हो गया मतलब लॉस हो गया। तो हमने बोले जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लॉस होते हैं, दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन लिख लो आप, रिडक्शन रिडक्शन रिएक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फेरिक क्लोराइड AbCl3 फेरिक क्लोराइड react with hydrogen form ferrous chloride plus HCl. So in the ferric chloride number of chlorine is 3 and in the product there is the ferrous chloride number of chlorine is 2. So there is loss of 1 chlorine from ferric chloride to ferrous chloride. So from ferric chloride to ferrous chloride is an example of reduction reaction, loss of electronegative element. हाइड्रोजन के साथ नेगेटिव, हाइड्रोजन के साथ किस कौन ऐड हो गया? नेगेटिव ऐड हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ये ऊपर वाला केस क्लीन कर दो। और हर कोई इक्वेशन को आपको जो केमिकल इक्वेशन आएंगे उससे बनाने की कोशिश करो, ट्राई करो। आप नहीं आए हम और भी दोबारा आपको एक एक एग्जाम्पल देना हम बता देंगे। नेक्स्ट है 5 टाइप।
बेसिस ऑफ, सुनाई दे रहा है आप सबको? हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। फर्स्ट हमने ऑक्सीडेशन, ये आपके लिए न्यू है, इतना टाइम जितना पढ़ाया ये आपको पहले वाला डेफिनेशन में था, लेकिन एक्सचेंज वाला देख के नहीं रखा। इसमें देखो एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कैसे है? सोडियम, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो इसमें क्या हो जाएंगे? सोडियम प्लस आयन हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन, एक्सचेंज मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन। इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज जब होगा जब एक छोड़ेंगे दूसरे को लेने की, दूसरे लेने वाला भी होगा, तब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, नहीं तो लॉस नहीं होता, नॉर्मली नहीं होते। जब कोई एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं, जैसे आप किसी को पैसा दोगे, कैसे दोगे? लेने वाला को तभी दे सकते हो। आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, सब पैसे पैसे दे रहे। तो सिमिलरली द केमिकल रिएक्शन in which one of reactant ions, atom or molecule, here reactant means ion, atom, molecule losses electron, is called oxidation reaction। वेरी सिंपल, जो जहां इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं आपको दिखाई देंगे वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जांपल आपको दिया था, देखो सोडियम, सोडियम प्लस, सोडियम एक 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया जिसके कारण सोडियम आयन में बन गया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें सोडियम का पूरे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने से 11 प्रोटॉन, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, इसलिए सोडियम पॉजिटिव आयन हो जाते हैं। तो कोई भी पॉजिटिव आयन बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, कैल्शियम, कैल्शियम प्लस प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते थे, लॉस करते हैं, कैल्शियम प्लस आयन बनते, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और देखो रिडक्शन, इसको जस्ट अपोजिट, आप अपर क्लास में जाके ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ोगे, यहाँ आपको नहीं है अभी, तो ये सीखो ऑक्सीडेशन स्टेट का भी सिखा देंगे। क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन, सेम द केमिकल रिएक्शन in which same one of the reactant, देखो रिएक्टेंट मतलब इसमें आयन्स हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं और मॉलिक्यूल हो सकते हैं, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं। इसमें लॉस था, इसमें क्या हो जाएंगे? गेन्स इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा मतलब एनायन में कन्वर्ट हो जाएंगे, इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। एग्जाम्पल हमने इसको ले लेता हूं, कोई भी एक देखो,
क्लोरीन दे रहा था हमने, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया था। ये क्या करेंगे ना, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, करने के बाद क्लोरीन माइनस एनायन में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो यहाँ क्लोरीन से क्लोरीन माइनस एनायन में कन्वर्ट होना ये रिडक्शन रिएक्शन है। ऐसे कोई भी एनायन कन्वर्ट हो जाएंगे। गेन, जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तब हम राइट इन द रिएक्टेंट में लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तब हमने राइट हैंड साइड में लिखेंगे इक्वेशन के। और इसके कारण आपको टोटल जो 5 टाइप्स है ये कंप्लीट हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ गेन और लॉसेस ऑक्सीजन, ऑन द बेसिस ऑफ गेन और लॉसेस हाइड्रोजन, on the basis of gain or losses मतलब combined or removal of electro positive element, on the basis of combined or losses of electro negative element, on the basis of exchange electron, on the basis of electron exchange, that means combined or gain or loss of electron. When electron is gained, this is reduction reaction. When electron is lost, this is ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इतना याद रखना, ऑक्सीडेशन लॉस, सॉरी इलेक्ट्रॉन लॉस ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, क्लीन करो। Yes, sir. Yes, sir. और इसके बाद हमने कुछ आपको असाइनमेंट देंगे। अभी तो इसको लर्न करो, फिर हमारा पास क्वेश्चन आपको भेज देंगे, आप उसको लिख के लर्न करके मेरे पास भेज देंगे, मैं चेक कर देंगे। अच्छा, ये हो गया आपको रिएक्शन। इवन हमने जो केमिकल रिएक्शन पढ़ा था, डेफिनेशन दिया था, तो केमिकल रिएक्शन के कुछ पार्ट है, ये प्राइमरी पार्ट, वो हमने थोड़ा पढ़ा लेते हैं। देखो केमिकल रिएक्शन आपने ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन के देखो हमने इसमें कार्बन ऐसे नहीं लिखा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। आप हो गया क्या टाइम? ठीक है, अभी बस छोड़ देते हैं। ये देखो ऐसे नहीं लिखा हमने, इसको किससे लिखा, इसको सिंबल में, किसमें, सिंबलिक फॉर्मूला में लिखा है। ये जो सिंबॉलिक फॉर्मूला में लिखते हैं इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, केमिकल इक्वेशन। इसको डेफिनेशन भी लिख लेना, केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल रिएक्शन को जो सिंबॉलिक फॉर्म में, रिटन फॉर्म में लिखा जाता है उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन बताया नहीं किसी ने, इक्वेशन क्या बोलेंगे, ये केमिकल इक्वेशन is a symbolic representation of एक केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को हम करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करता हूं, केमिकल रिएक्शन by their symbol or formula of reactant and product। ये केमिकल इक्वेशन इज ये सिंबलिक, इसमें और भी जोड़ दो, इज अ रिटन WRITT एंड रिटन शॉर्ट फॉर्म SHORT शॉर्ट फॉर्म ऑफ शॉर्ट सिंबलिक, कमा लगा रिटन शॉर्ट सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन by their symbol of, by the symbol of, not there, by the symbol of, symbol or formula of reactant and products।
एग्जाम्पल ये है। आज इतना तक, इसको रिवाइज करो, ठीक है। फिर हम कल, लेकिन कल कंप्लीट हो जाएंगे ये चैप्टर मेरे हिसाब से। इसके बाद आपको असाइनमेंट मिलेंगे, वो कंप्लीट करना और हम कंप्लीट कर लेंगे उसके। ओके।